Hello everyone, welcome to class 8 sessions of subject civics, and today we are discussing chapter number 5 and the chapter name is judiciary. This is your third session. तो बच्चों हम लोग क्लास 8 का सब्जेक्ट सिविक्स डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है जुडिशरी और ये आपका थर्ड सेशन है. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था. आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन. ओके, so if you remember in our last class we talked about the role of judiciary, we completed this topic. So let me remind you again कि क्या क्या roles हैं, जो basic functions है judiciary के. So the first role that we talked about was the dispute resolution. In that the dispute can be between two states, or it can be between the center or the states, or it can be between the citizen or the central state or the state government, right? Apart from that the dispute can always be between two citizens, right? So ये किसका काम होता है ये सारे disputes को resolve करना? So it is the work or it is the role of the judiciary. Apart from that, two other main roles of the judiciary is the judicial review, जिसके बारे में हम लोग ने अपने previous session में पढ़ा था. In that, it is within the power of the judiciary to strike down any law that has been passed by the parliament on the basis of what? So it is on the basis that if any law is violating the basic structure of constitution, then the judiciary has the power to strike down that law. ओके उसके बाद हम लोग ने थर्ड रोल देखा था फॉर अपहोल्डिंग लॉ एंड एनहांसिंग द फंडामेंटल राइट्स. तो हम लोगों ने क्या देखा दैट ईच एंड एवरी सिटीजन हु फील्स दैट their fundamental right has been violated, so they can approach court, the high court or the supreme court, to know more about that and also to seek help from the courts, right? उसके बाद बच्चों हम लोगों ने समझा what is independent judiciary and also why is it important to have judiciary as an independent organ. तो जैसे आप लोगों ने पढ़ा है that there are three organs of the state. The first is your legislative, then executive, then your judiciary, right? तो बच्चों independent judiciary कहने का क्या मतलब है? So basically a concept in which judiciary is kept away from that of the two other organs of the state, that is your executive and legislative, right? तो हम लोगों ने देखा क्यों जुडिशरी को इंडिपेंडेंट किया जाता है. मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था दैट इफ देयर इज अ रिच और पावरफुल पॉलिटिशियन एंड ही हैज टेकन ओवर योर लैंड, और अगर आप कोर्ट जाओगे तो ऑब्वियसली अगर उस जज को ब्राइब किया गया है, सो दैट जज विल टेक द फेवर ऑफ दैट पावरफुल पॉलिटिशियन, राइट? आप कितने भी सही हो या फिर आपका लैंड भी हो, बट स्टिल ही इज गोइंग टू फेवर दैट पॉलिटिशियन. Therefore it has to be kept in mind that, and it is also for the judiciary to ensure that the legislative or the executive cannot have any bad influence or improper influence on the judiciary. That is why judiciary has to be kept independent from the other two organs, right? Quite easy to understand. And also we understood why is it important. तो हमने देखा ताकि जो हमारे legislative या executive है वो लोग कुछ गलत function ना करें, right? वो लोग bribe ना करें in order to get the result in their own favor. Apart from that, judiciary is responsible for enforcing the fundamental rights. So therefore अगर मान लो वो लोग खुद ही bribe हो जाएंगे तो जो लोगों के fundamental rights है उसको ensure कौन करेगा? Therefore it is really important to keep judiciary independent from both the executive and the legislative. The judiciary is not at all working under the government. Okay, so this is one important point that you should keep in your mind. अब बच्चों आज की क्लास में हम लोग अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, that is the structure of courts. तो इतने टाइम से आप लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में सुन रहे हो, हाई कोर्ट्स के बारे में सुन रहे हो, सो ऑब्वियसली अब तक आपको आइडिया लग गया होगा कि देयर इज नॉट वन सिंगल कोर्ट जहाँ पे सारे लोग जाते होंगे, राइट? अगर मान लो सिर्फ एक ही कोर्ट होता है जहाँ पे मान लो हर एक स्टेट के लोगों को दिल्ली आना पड़ता है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, सो ऑब्वियसली इट वुड बी डिफिकल्ट टू मैनेज ईच एंड एवरी केस, राइट? Therefore there has been this structure of courts depending on particular state, मतलब एक स्टेट के अंदर या फिर डिस्ट्रिक्ट्स में. तो हम लोग बेसिकली वो पूरे स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं. व्हाट आर दी थ्री स्ट्रक्चर्स ऑफ द कोर्ट हियर? सो देयर आर थ्री डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट्स इन आवर कंट्री. ओके, तो आप याद रखना हाउ मेनी लेवल्स आर देयर ऑफ द कोर्ट्स इन आवर कंट्री. सो देयर आर थ्री डिफरेंट लेवल्स ऑफ द कोर्ट्स इन आवर कंट्री. Okay, now there are several courts at the lower level while there is only one at the apex level. तो बच्चों लोअर लेवल अगर हम लोग लोअर लेवल पे देखेंगे तो बहुत सारे आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में बहुत सारे लोअर कोर्ट्स मिलेंगे, राइट? लेकिन अगर हम लोग सिर्फ एपेक्स लेवल की बात करें, मतलब टॉप लेवल पे कौन सा कोर्ट है, तो therefore there is only one court that is at the apex. और ये मैंने आपको पहले भी बताया है. सो अगर आप ये पिरामिड देखो बच्चों, सो while we are talking about the structure of court, it forms a pyramid. आप ये पिरामिड के फॉर्म में इसको याद रख सकते हो. ओके, so the first one here is Supreme Court.
ओके, दैट इज द एपेक्स कोर्ट, मतलब जो टॉप लेवल पे आपका कोर्ट है, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर में कौन सा है? सो इट इज द सुप्रीम कोर्ट दैट टेक्स ऑल द डिसीजंस. आफ्टर दैट इट इज योर हाई कोर्ट एंड देन इट इज योर लोअर कोर्ट. और लोअर कोर्ट में फिर आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो होता है, उसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे. तो बच्चों सबसे पहले हम लोग समझते हैं अबाउट द सुप्रीम कोर्ट. ओके, सो at the top is the Supreme Court that is located in New Delhi and is presided over by the Chief Justice of India. तो बच्चों अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, so where is the Supreme Court located? तो आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ एपेक्स लेवल पे एक ही कोर्ट है, that is the Supreme Court, that is at the highest order, and all the decisions that has been taken by the Supreme Court is binding to all the other courts, जिसके बारे में मैं आपको अभी बताती हूँ. So basically for you to remember here is that at the top is the Supreme Court, and where is the Supreme Court located? So please remember it is located in New Delhi. Okay, and इस Supreme Court में जो हमारे जज कौन होते हैं? So it is the Chief Justice of India, right? जो सबसे हाईएस्ट लेवल पे होते हैं, सारे जजेस के ऊपर जो मेन जज होता है, so it is this Chief Justice of India. Okay, so therefore the Supreme Court is presided by the Chief Justice of India. Please remember this point. Also, the decisions made by the Supreme Court are binding on all other courts in India. तो बच्चों जैसे अभी आपने देखा कि हमारे 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट हैं, तो पहला आपका सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद आपके हाई कोर्ट्स आते हैं, एंड देन इज योर लोकल कोर्ट्स और द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, राइट? तो बेसिकली बच्चों जो भी डिसीजन अगर सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, सो दैट डिसीजन इज बाइंडिंग टू ऑल द अदर कोर्ट्स. मतलब मान लो आप आगे की क्लास में एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझेंगे कि मान लो कोई लोअर लेवल पे कोई एक केस हुआ है और वो केस पास ऑन हो जाता है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से फिर वो सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है, मान लो वहां पे डिसीजंस जो लिया गया है एंड द पर्सन हु इज इन रिलेटेड टू दैट केस ही इज नॉट हैप्पी विद द डिसीजन, तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट जस्टिस. ओके, सो देयरफॉर जो भी आपका फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने लिया है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है. इट हैज टू बी फॉलोड बाय ईच एंड एवरी कोर्ट in our country India. Okay, and in this picture you can see this is the photo of Supreme Court here. Okay, अब बच्चों हम लोग पढ़ते हैं हाई कोर्ट के बारे में. ओके, सो वेयर इज दिस हाई कोर्ट्स लोकेटेड? सो ईच स्टेट हैज अ हाई कोर्ट व्हिच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दैट स्टेट. तो बच्चों अब आपको पता है आवर कंट्री इट हैज 29 टोटल स्टेट्स, राइट? टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इन आवर कंट्री इज 29. ओके, सो देयरफॉर हर एक स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट होता है, दैट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दैट स्टेट. फॉर एग्जाम्पल अगर वो बिहार का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो बिहार में जो कैपिटल सिटी है, जरूरी नहीं कि कैपिटल सिटी में ही हो, लेकिन बिहार में एक पर्टिकुलर हाई कोर्ट है, राइट? वो वहां का हाईएस्ट कोर्ट होगा. फॉर दैट एग्जाम्पल, फॉर एज मैटर ऑफ दैट अगर हम लोग एग्जाम्पल ले महाराष्ट्र का, तो मुंबई या कहीं भी आपका एक कोर्ट लोकेटेड होगा, हाई कोर्ट होगा, दैट इज द हाईएस्ट कोर्ट देयर इन दैट पर्टिकुलर स्टेट. ओके, देयरफॉर यू कैन से दैट हमारे कंट्री में आप जितने भी स्टेट्स देखो, जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, राइट? तो हर एक जगह पे एक हाई कोर्ट होता है और वहां पे एक जज प्रिसाइड करता है, राइट? जो हाई कोर्ट के जज हुआ करते होंगे, जो सीनियर जजेस होते हैं, वो अपने हाई कोर्ट के जज होते हैं. ये सारी चीजें आप सीनियर क्लास में पढ़ोगे, दैट हाउ आर जजेस सेलेक्टेड, हाउ आर जजेस इलेक्टेड, एंड ऑल्सो हु आर देयर इन द हाई कोर्ट्स, हु आर देयर इन द सुप्रीम कोर्ट. तो ये सारी चीजें आप आगे ही क्लास में पढ़ोगे, बस यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट समझने की जरूरत है. ओके, अगेन ऑल्सो रिमेंबर दिस पॉइंट कि देयर आर टोटल 21 कोर्ट्स इन आवर कंट्री. तो आपको लग रहा होगा कि अभी मैंने आपको बताया दैट देयर आर टोटल 29 स्टेट्स, तो व्हाट हैपेंड टू ऑल दीज अदर 7-8 स्टेट्स? तो पंजाब एंड हरियाणा शेयर कॉमन हाई कोर्ट एट चंडीगढ़ एंड द 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैव अ कॉमन हाई कोर्ट एट गुवाहाटी. तो बच्चों याद रखना कि आपका जो पंजाब और हरियाणा, यू कैन लोकेट इन योर मैप ऑल्सो, यहाँ पर जो पंजाब और हरियाणा लोकेटेड है, इनका एक कॉमन हाई कोर्ट है, दैट इज लोकेटेड इन चंडीगढ़, राइट? और वही अगर आप देखो कि जो 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है आपको पता होना चाहिए कि आपके यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में कितने टोटल 7 सिस्टर्स हैं, राइट? तो ये जो 7 स्टेट्स है बच्चों, जो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तो इन सबका कहाँ पे जो हाई कोर्ट लोकेटेड है वो कहाँ है? सो इट इज लोकेटेड इन आसाम, जो उसका कैपिटल इट इज लोकेटेड इन आसाम, यहाँ पर गुवाहाटी में. ओके, तो प्लीज रिमेंबर कि इनके ये जो 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, इनका एक कॉमन हाई कोर्ट है, गुवाहाटी में लोकेटेड है, और पंजाब और हरियाणा का जो कॉमन हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़ में लोकेटेड है. देयरफॉर देयर आर ओनली 21 हाई कोर्ट्स इन आवर कंट्री हियर. ओके, हर एक स्टेट में जैसे लोकेटेड है. देयरफॉर लेट अस आल्सो अंडरस्टैंड कि पहले हाई कोर्ट्स कब एस्टैब्लिश हुए थे. ओके, सो हाई कोर्ट्स वर फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन द 3 प्रेसिडेंसी सिटीज ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास इन 1862.
तो बच्चों आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा अबाउट द प्रेसिडेंसी सिटीज, ओके, जो जब ब्रिटिश यहाँ हमारे कंट्री में आए थे, सो आफ्टर सेटिंग अप देयर एडमिनिस्ट्रेशन उनका 3 मेन एरिया बना था, 3 मेन प्रेसिडेंसी सिटीज थे जहाँ पे उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को सेटअप किया था, एंड ऑल्सो दीज वर नोन एज द एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, ओके। और ये 3 प्रेसिडेंसी स्टेट्स कौन थे? तो इट वाज कैलकाटा द फर्स्ट वन, सेकेंड वन वाज बॉम्बे एंड थर्ड वन वाज मद्रास। तो ये तीनों जगह पे जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है बच्चों, वहां पे सबसे पहले हाई कोर्ट स्टैब्लिश किया गया था, एंड इन विच ईयर इट वाज डन? It was done in 1862. Again, please remember the 3 presidency states and also in which year the High Court was established in these presidency states. यहाँ पर आप देखो आज का जो प्रेजेंट डे मुंबई है, पहले वो बॉम्बे कहलाता था, तो ये आपका मुंबई का हाई कोर्ट है. दिस इज योर दिल्ली हाई कोर्ट, राइट? ऑल्सो द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली केम अप इन 1966. सो प्लीज अगेन रिमेंबर दिस पॉइंट. कब दिल्ली का हाई कोर्ट, आपको सारी स्टेट्स का याद नहीं करने का है, बट यहाँ एनसीईआरटी में जो भी आपके बुक में दिया हुआ है, so you should at least know that point. Also currently there are 21 high courts. तो मैंने आपको जैसे बताया 21 high courts हैं यहाँ पर हमारे कंट्री में. Okay, please remember these points. Now the third level is of the district courts. जो हम लोग lower courts की बात कर रहे हैं, तो जैसे आपको पता है that each state is divided further into several districts, right? हर एक स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं. So definitely हर एक स्टेट का एक अगर हाई कोर्ट है तो वहां पे डिस्ट्रिक्ट्स में भी पर्टिकुलर लोअर कोर्ट्स हैं जिनको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कहते हैं. Okay, so the courts that most people interact with are what are called subordinate or district courts. तो बच्चों जो आपके लोकल लेवल पे जो कोर्ट्स होते हैं, जहाँ पे लोग जनरली जाते हैं, वहां पे अपना कोई भी केस लेकर जाते हैं, तो वही आपका जो लोकल लेवल पे जहाँ पे लोग सबसे ज्यादा इंटरैक्ट करते हैं, so it is your district or subordinate court. Also, each state is divided into districts that are presided over by a district judge. तो बच्चों जितना भी स्टेट है वो आपको पता है कि it is divided into districts. और हर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर एक पर्टिकुलर लोकल कोर्ट है, अगर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो वहां पे हु इज प्रिसाइडिंग ओवर दैट कोर्ट? सो इट इज योर डिस्ट्रिक्ट जज हु इज प्रिसाइडिंग ओवर दैट पर्टिकुलर कोर्ट. ओके, अब आप लोगों ने ये 3 कोर्ट्स के बारे में पढ़ा, पूरा स्ट्रक्चर समझा है दैट एट द एपेक्स लेवल इट इज योर सुप्रीम कोर्ट, और जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने लिया है सो दैट इज बाइंडिंग टू ऑल द अदर कोर्ट्स. जो आपके हाई कोर्ट्स हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, लोकल लेवल पे जितने भी कोर्ट्स हैं, so definitely all the other courts they have to approve or they have to respect the decision of the Supreme Court. फिर आप लोगों ने हाई कोर्ट के बारे में देखा that each state has one high court that is the highest court there, okay? और वही स्टेट में आप लोग देखोगे कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं obviously, so all these districts they have their particular court that is known as the district court or the subordinate court. So here you have to remember all these points कि कौन कौन से कोर्ट्स हैं और उस कोर्ट्स में कौन रहता है, also how many courts are there, high courts are there in our country, how many district courts are there, so you should know all these points. Okay, यहाँ पर आप पिक्चर में देखो बिलासपुर का जैसे ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, दिस इज वन डिस्ट्रिक्ट हियर. अपार्ट फ्रॉम दैट दिल्ली में ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ साकेत. तो ये सारे रीजन है दैट यू नो यू कैन ऑल्सो गूगल इट एंड यू कैन सी व्हाट आर सम ऑफ द अदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो उसका कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये सारी चीजें आप पता कर सकते हो व्हाइल यू आर रीडिंग अबाउट द कोर्ट्स, द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया. ओके, तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? बेसिकली वी टॉक्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स. हमने देखा व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स. तो देयर आर 3 लेवल्स, 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ द कोर्ट. एट द एपेक्स इज योर सुप्रीम कोर्ट, देन कम्स योर हाई कोर्ट, एंड एट द लोअर लेवल इट इज योर लोअर कोर्ट्स और द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. वी इवन कॉल इट एज सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. अब बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग एपिलेट सिस्टम के बारे में समझने वाले हैं, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस मेनली दैट कैसे ये सारे जो आपके कोर्ट्स हैं दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, और ये एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे. ओके, so that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.